A wonderful good morning, all of you. My name is Mrs. Ritu Agrawal, and I'm from Nahar Convent Higher Secondary School, Ratlam. First, I hope you will be fine at home and you are doing very well. Yes? Okay, so in this video, I'm going to explain a very important grammar topic, that is narration. And also, you have heard the extra name of this topic, that is direct to indirect speech, and also we call it reported speech. I hope you have learned something about it in your before classes. So today in this video I am going to explain in very simple language about this topic. So please watch this video and listen to me, be careful, and after that if you have any doubt, so you can ask me. Okay, so without wasting time, let's start. First question is, what is narration? Whenever we will talk about this topic, so the question comes in our mind, what is narration? So the answer is the recounting of an event or series of events, the act of telling a story. So that is narration. जब भी आप किसी इवेंट को, किसी भी स्टोरी को रिकाउंट करते हो तो उसे हम नरेशन बोलते हैं. ओके, दैट टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन. यहाँ पर एक मैसेज को दो तरीके से कन्वे किया जाता है और द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन टू द अदर पर्सन. इट मीन्स जब एक मैसेज दूसरे मैसेज को कन्वे किया जाता है तो वो ही मैसेज को वो थर्ड पर्सन को जब कन्वे करता है तो उसमें कुछ चेंजेस होता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, types of narration. Now we'll talk about the types of narration. So here is, I told we say it also direct to indirect speech. So obviously the first person is reporting here, reporting here to the second person, and to second person is reporting here द थर्ड पर्सन. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को रिपोर्ट कर रहा है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को रिपोर्ट कर रहा है. ओके, सो द फर्स्ट पर्सन इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अ कैरेक्टर टिपिकली the protagonist but not always is telling the story. You will notice a lot of I and me or we in first person narration. आप अधिकतर इन narrations, सब narrations जब भी फर्स्ट पर्सन की बात होगी तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पर देखोगे. Okay, now we'll talk about the second person. So in this point of view, the author uses a narrator to speak to the reader. It means जब कोई पर्सन किसी सेकेंड पर्सन को जाकर वो बात बोलता है तो वो उसको पहले सुनता है, उसको रीड करता है, उसको पढ़ता है. देन यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ यू, योर एंड योर्स. सो सेकेंड पर्सन कोई भी हो सकता है, यू, योर एंड योर्स in second person narration. Okay, understood. Now come to the third person. So in this point of view, an external narrator is telling the story. So you will notice a lot of he, she, it, they in this form of narration. It means जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को जाकर रिपोर्ट करेगा और वही बात वो थर्ड पर्सन से जाकर रिपोर्ट करेगा तो वहाँ पर इस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि सब्जेक्ट में होते हैं. ओके, नाउ next we'll see, we call it also direct to indirect speech, as I told you. Here I'm showing you an example so you can understand very easily what is happening here. Okay, so an example here for you. It means here I am representing of myself. Suppose I say here, I said I am teaching. So this is a part of direct speech. ये direct speech होगा. Now I told you, you have to change into indirect speech कि आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें. सो दैट टाइम यू विल मेक अ सेंटेंस ही और शी, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट हु इज़ हियर आई. आई कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. ओके, सो ही और शी टोल्ड. याद रखिए जब भी डायरेक्ट स्पीच होता है वो कोट में लिखा जाता है, इन कोट में होता है इसलिए उसमें इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं. लेकिन जब बात इनडायरेक्टली होती है उसमें हम किसी भी इन्वर्टेड कोमा का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, इसलिए जब भी आप इनडायरेक्ट में बोलोगे तो उसमें आपको इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है एंड उसकी प्लेस पर हमको टोल्ड यूज़ करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट हियर वी विल ऐड अ कंजक्शन वर्ड, दैट इज़ डेट. डेट हमको एज अ कंजक्शन वर्ड यूज़ करना है. एंड आफ्टर विल मेक अ सेंटेंस लाइक अ प्रॉपर वे. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द टेंस. सो दैट ही और शी वॉज टीचिंग. यहाँ पर सेंटेंस आपका जो प्रेजेंट में था वो अब पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आगे नेक्स्ट में आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जब डायरेक्ट स्पीच में हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो जो वो इनडायरेक्टली बात होती है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है.
Okay students, so next see कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस ऑफ पास्ट फॉर्म इन एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ चेंजेस होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में शो कर रखे हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट। जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात होगी वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके, ऑलवेज। ये याद रखने की बातें हैं, अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो सेंटेंस कभी भी बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। सो रिमेंबर दैट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। एंड फ्यूचर टेंस जो होता है विल शेल, उसे हम वुड में चेंज करते हैं। एंड सम ऑफ द मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स यू कैन सी हियर ऑल्सो। कैन को कुड में चेंज करना है और मे को माइट में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट if reported speech, one more thing, so remember that it is very important for you whenever you are making any type of direct, any type of indirect sentence, okay, direct to indirect sentence, so that time you remember it, okay, it is very useful. If reported speech has universal truth or habitual fact, then there is no change in the tenses. अभी हमने जो बात करी है चेंजेस की, वो हमेशा नहीं होगा। कुछ सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ के होते हैं। जैसे हियर इज एन एग्जांपल, यू कैन सी आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ओके। सो whenever you will change into indirect, so that time you told also our teacher said that the earth is round, okay, only we will add here conjunction word, ओके और कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है। ऐसे ही कुछ सेंटेंस होते हैं जो हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, जैसे कोई राइट हैंड प्लेयर होता है, कोई लेफ्ट हैंड प्लेयर होता है, ये हैबिचुअल पार्ट होता है हमारी लाइफ का। सो हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू सो यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड, सो राजीव टोल्ड मी दैट, ओके, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, दैट ऐड होगा वहाँ पर एज अ कंजक्शन, एंड he plays with the right hand and it's a part of habitual fact, so you can see here हम कुछ भी change यहाँ पर नहीं करेंगे। Okay student, I hope you have understood. Now in the last I want to say something only, that you have to understood very clearly about the narration part in English grammar, and after that you are any problem, you are having any problem, so you can ask me. Okay, thank you so much for watching this video. Keep study at home and take care of yourself.